Hello and a very warm welcome to Thorough Newspaper Analysis for 21st of March, which is brought to you by Law Seekho. Now let's proceed with today's agenda. पहले हम कुछ relevant national and international news updates की बात करेंगे. This is going to be followed by two legal updates. एक हमारे पास Supreme Court का judgment है and then we have an update coming from the Allahabad High Court. And lastly, हम एक editorial discuss करेंगे which was published in the Indian Express by the title of The Truth Bites, and it essentially talks about the issue of dog bites and the various aspects of it, जो legal framework है, उसकी inadequacy and what can be the possible way forward. Now let's proceed with the very first update that we have under the category of national news. So essentially recently National Company Law Tribunal ने HDFC Limited and HDFC Bank के merger को approval दे दिया. Now see, this is going to be the largest merger in the history of corporate India because इससे होगा क्या? This is going to create a massive banking entity because इसमें दो major players का combination है, which is first HDFC Limited. तो HDFC Limited जो है, it is leading financial institution in our country, जिसकी establishment 1977 में हुई थी with the very object of providing finance for purchase and construction of homes. HDFC Limited बहुत सारे financial services and products run करती है in the form of, let's say, जो हमारे home loans हो गए, mutual funds, banking services and all and of course insurance, and there are other range of services also which are offered. And इससे अब merger से हुआ क्या? This has combined India's largest housing finance company, which is HDFC Limited, and of course India's largest private lender, HDFC Bank itself. इस पूरे merger की valuation है $40 million and it was approved by stock exchanges and the Competition Commission of India. Now let's proceed with the next update that we have. It is with respect to the imposition of fine or penalty on HDFC Limited itself by RBI. तो रिसेंटली आरबीआई ने 5 लाख की पेनल्टी लगाई है ऑन HDFC लिमिटेड, एंड ये इसलिए लगाई है बिकॉज 2019 एंड 2020 में HDFC लिमिटेड ने ट्रांसफ़र नहीं किए वो सारे डिपॉजिट्स जो कि मच्योर हो गए थे, एंड डिपॉजिटर्स हैड बीन आस्किंग फॉर देयर मच्योर्ड डिपॉजिट्स इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हुए थे. इस कारण अब आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है. एंड आरबीआई का कहना है कि HDFC लिमिटेड ने it did not comply with certain provisions of Housing Finance Company Directions of 2010. तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस जो 2010 की है उसके कुछ प्रोविजंस की नॉन कंप्लायंस हुई है ऑन द पार्ट ऑफ HDFC लिमिटेड, एंड दीज डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स वर इशूड बाय National Housing Bank. Now, as far as the statement that has come from HDFC's Limited is concerned, उन्होंने कहा है कि they are going to look into this matter and will comply with the directions which have not been complied so far. Moving further, this is an interesting update indeed. Recently, एक Hyderabad based company ने which goes by the name of Savaya Robotics, in collaboration with 2 labs of DRDO, they've created India's first quadruped robot and wearable exoskeleton. क्वाड्रोपेड रोबोट की अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये 4-legged रोबोट्स हैं जो कि दे कैन वॉक एंड रन ऑन अनइवन एंड रफ टेरेन्स. तो जैसे अगर हम मिलिट्री की बात करें तो आवर मिलिट्री पर्सनल्स दे आर पोस्टेड एंड ऑन वेरियस प्लेसेस, जैसे कि हिली रीजन्स में एंड अदरवाइज ऑल्सो, जहाँ पे कि बहुत ही अंडुलेटिंग सी टेरेन होती है, एंड वहाँ पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक एंड टू कैरी आउट मिलिट्री फंक्शंस एंड कैरी लोड्स ऑल्सो. तो वहाँ पे इसकी यूटिलिटी है कि ये 4-legged रोबोट है, इट कैन वॉक और रन ऑन दीज अनइवन एंड जो रफ अंडुलेटिंग टेरेन्स है, जो ऐसी ज़मीनें हैं जो समतल नहीं है वहाँ पर, एंड ये 25 kg तक का वेट उठा सकते हैं, एंड दे कैन नेविगेट ऑल्सो. इसकी एक और यूटिलिटी है, कई बार क्या होता है कि हमें मतलब इंस्पेक्शंस आर टू बी कैरीड आउट ऑन रफ लोकेशंस जो रिमोट होते हैं जहाँ पे काफ़ी खतरा होता है, तो वहाँ पे हम किसी ह्यूमन को भेजने से हिचकिचाते हैं, एंड मिलिट्री ऑपरेशंस में ऑल्सो. तो वहाँ पे एक इंस्पेक्शन रिमोट एरियाज़ में और ऐसी जो रिस्की एरियाज़ हैं, जो अनस्ट्रक्चर्ड एरियाज़ है, वहाँ पे इन रोबोट्स का यूज़ हम कर सकते हैं. अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये एसेंशियली वेरेबल सूट्स कह सकते हैं आप इसे, जो कि ये, और इसका एक फीचर ये है जो इंडिया में अभी डेवलप हुआ है, जो हमारे इंडियन
सोल्जर्स की एंथ्रोपोमेट्री है, मतलब उनके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनकी साइज़, शेप एंड उस सारी उस जो ये मोडालिटीज़ है उनको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन करा गया है। और इसका पर्पज़ यही है कि सोल्जर्स कैन वेयर दी सूट्स एंड इससे उनकी स्ट्रेंथ ऑगमेंट होगी, दे कैन वॉक लॉन्गर डिस्टेंसेज, दे कैन लिफ्ट वेट विदाउट पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। तो इससे क्या होता है, फटीग रिड्यूस होता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर हम डीआरडी की बात करें तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958 एंड अभी करंट जो इसके चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर समीर वी कामत। मूविंग ऑन टू द फोर्थ अपडेट फॉर टुडे, this is coming from the state of Rajasthan. तो recently Rajasthan government which is led by अशोक गहलोत, उन्होंने 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 नए एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की घोषणा करी है। एंड दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग अ डिस्कशन on the finance and approbation bill in the legislative assembly of the state. तो with the announcement of these new districts and divisions, अब राजस्थान में टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है। अगर हम 3 इन एडमिन डिवीजन की बात करें तो ये है सिक्कर, बांसवाड़ा एंड पाली। एंड अगर हम ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी क्रिएशन हुई इनकी बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोधपुर एंड जयपुर। सो जयपुर वाज अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट बट अब उसमें उसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए एंड सो फार एज जोधपुर इज कंसर्न्ड इट इज़ नाउ बीन बाइफर्केटेड इनटू 3. Now as far as now the tally of districts in different states is concerned, so Rajasthan now stands at third position because UP में we have maximum number of district which is 75 and this is followed by MP जिसमें 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड राजस्थान ऑफ कोर्स नाउ हैज़ 50 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम इसकी जोग्राफी की बात करें तो एरिया वाइज इट स्टैंड्स एट नंबर 1 पोजीशन एंड पॉपुलेशन वाइज वो 7th पोजीशन पे। अब मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे पर्टिनेंटली। रिसेंटली हमने अपने TMNA में कवर करा था MP का जो 50 जो अभी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट MP का एक अनाउंस हुआ है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पुट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि एक तहसील रेवा से सेपरेट होकर अब एक नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इज हमने हाल ही में एक और अपडेट कवर करी थी अबाउट लिटरेसी रेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो आई वुड रियली लाइक टू नो कि राजस्थान की लिटरेसी रेट क्या है एंड वो कौन सी स्लैब में फॉल करता है, हाईएस्ट लिटरेसी, मीडियम, लो, विच रेंज डज इट फॉल? I'd like to hear from you in the comment section. Now let's proceed with the next update for today. This is with respect to the textile parks which have been announced by Honorable Prime Minister of India. तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मित्रा मेघा टेक्सटाइल पार्क्स शैल बी सेट अप इन वेरियस स्टेट्स, जो कि है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP एंड UP। और ये पर्टिकुलर जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं ये ऑगमेंट करेंगे हमारे 5F विजन को। 5F विजन क्या है? एसेंशली फार्मर, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। तो यू कैन सी फ्रॉम फार्मर, the factory, the raw material goes to the factory, then it leads to a fashion hub that India can create. It has the potential of creating when it comes to the textile sector and we can produce for the world at mass level. तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ट्वीट करके ट्विटर अकाउंट से यही कहा है कि इस पर्टिकुलर सेटअप से क्या होगा, हम स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे फॉर टेक्सटाइल सेक्टर्स एंड इससे हमारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी एंड ऑल्सो जॉब्स क्रिएट होंगी एंड इससे हमारे 2 जो मोटोज है उनको और एनकरेजमेंट मिलेगी, विच इज़ मेक इन इंडिया एंड ऑल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट विच इज़ अगेन इन द डिफेंस सेगमेंट। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज जो इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में होगी। सी दिस इज़ द सेकेंड एडिशन ऑफ अफ्रीका इंडिया फील्ड training exercise of 2023 and this is going to be conducted from 21st to 30th of March. Along with that, India will host African Chiefs Conclave and this is going to be held on 28th of March in Pune. अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें इस बारी 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी एंड इस कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस में 22 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। इफ़ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस एक्सरसाइज वेरी क्विकली, तो 2019 में सबसे पहली एक्सरसाइज हुई थी एंड दिस वाज अगेन हेल्ड इन पुणे जिसमें 20 अफ्रीकन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। एंड द फर्स्ट अफ्रीकन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव इट वाज हेल्ड in 2020 in Lucknow.
एंड इस एक्सरसाइज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस एंड ये जिसमें ड्रिल टैक्टिक्स और ये सारे मिलिट्री रिलेटेड ऑपरेशंस की ट्रेनिंग होगी एंड उसके अलावा यूएन की कुछ मैंडेट्स को मद्देनज़र रखते हुए ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस की भी प्रैक्टिस और ड्रिल्स करी जाएंगी. Moving on to now the segment of personalities that we have. This is from the field of hockey. So recently, Hardik Singh and Savita Punia, they win the title for the Men's and Women's Player of the Year award respectively. And as far as this award is concerned, तो ये इंडियन हॉकी लेजेंड के नाम पे है जिनका नाम है बलवीर सिंह. Now we've come to the segment of international news for today. सबसे पहले एक बहुत ही important update है which is about terrorism index. See, global terrorism index of 2023 उसकी report अभी सामने आई है जिसमें again for the consecutive 4th year Afghanistan has topped the charts. The other countries to make it in the place of top 5 nations are Burkina Faso, which is a West African country. This is followed by Somalia, Mali and Syria. See, as far as India's rank is concerned, तो India 13th position पर है और 13th position again is high, मतलब उन countries में से आता है इंडिया जो top 5 worst hit terrorist countries हैं उनमें of course it features. and अगर हम इस index की बात करें तो ये एक annual report है which is prepared by Institute for Economics and Peace and ये essentially data को analyze करता है which is collected and collated by global terrorism which is done by this consortium for study of terrorism and responses to terrorism at University of Maryland. एंड ये 4 फैक्टर्स पे ये इंडेक्स 163 कंट्रीज़ को रैंक करता है. ये वो 4 इंडेक्स और फैक्टर्स और इंडिकेटर्स कौन से हैं? पहला तो कि पर ईयर टेररिस्ट इंस्टेंसेस कितने हुए हैं, फिर नंबर ऑफ फेटलिटीज़ कितनी कॉज हुई, मतलब कैजुअलिटीज़ कितनी लोगों की डेथ हुई है इस टेररिज्म पर ईयर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण, फिर नंबर ऑफ इंजरीज कॉज बाय दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पर ईयर एंड लास्टली कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है इन पर्टिकुलर अटैक्स में. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट इन इंटरनेशनल सेगमेंट इटसेल्फ. सी, on 20th of March, International Happiness Day was celebrated. This is indeed an important update because this is celebrated to commemorate the importance of happiness and overall well-being of an individual. And इसका theme था be mindful, be grateful and be kind. अगर हम इसकी historical significance को देखें तो जुलाई 12th 2012 में UN ने अनाउंस किया था 20th of March as the International Day of Happiness, and this was done after Bhutan advocated the concept of happiness. And the very first day जो हमने ये पहली बार ये commemorate किया था, celebrate किया था, that was in 2013. And as far as UN General Assembly is concerned, because General Assembly ने ही announce किया था 20th of March as this particular day, तो उसका headquarter है at New York in US. Now, another update that we have is with respect to the Time magazine's list of world's greatest places of 2023. तो इसमें सबसे पहले है Dakar of Senegal, which is again a West African country. It has been selected as the best place of 2023 by this magazine. अगर हम इंडिया की बात करें तो मयूरभंज, which is in Orissa, and the Union Territory of Ladakh, they have featured in this particular listing. अगर हम उसकी बात करें as to why they were listed or featured in this list, so this is because considering the endangered tigers and historical temples and the adventurous and the cuisines available in these particular places. And with this, we've come to the end of legal update, the news update, and we now proceed with legal updates. पहला अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से. ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ सील्ड कवर नोट that was being submitted by the central government in the matter related to dispersal of pension arrears. तो पेंशन के रिगार्डिंग जो मैटर्स हैं, नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन ऑन टाइम, उनकी जो पूरा मैटर चल रहा है उसमें सेंटर ने एक अपील करी. इट स्टेट बिफोर द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट दैट इट वांटेड टू सबमिट सर्टेन थिंग्स इन अ सील्ड कवर. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ दैट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट नाउ वांट्स टू एंड दिस प्रैक्टिस.
नेक्स्ट अपडेट इज़ फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रीइटरेट किया है, मतलब रीअफर्म किया है फिर से कि प्रोविजंस ऑफ द मटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961 अलाउड मदर्स टू enjoy maternity benefits even after the birth of their child. So once the mother gives birth to the child, उसके बाद भी मदर के पास maternity leave का benefit होता है under the provisions of ये वाला act, which is Maternity Benefit Act of 1961. And with this, we have come to the editorial discussion for today, which is an Indian Express editorial. See, the title of this particular editorial is The Truth Bites, and it essentially, इसमें हम 5 segments की बात करेंगे. First is, it shows or throws light on some data, जहाँ पे हमें इस चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है कि कैसे डॉग्स के कारण ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों कैजुअलिटीज़ फेस करनी पड़ी है. एंड दूसरा, दिस हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसी फेलियर टू एड्रेस दिस इशू. Thirdly, it talks about how concept of being a pet parent एंड ओनरशिप हमारी कंट्री में बहुत ही रेयर है, एंड हमारा रिलेशनशिप इन डॉग्स या फिर स्टे एनिमल्स के साथ कैसा है उसकी एक स्लाइट सी ग्लिम्स है. एंड फोर्थली, इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स अंडर द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2001 एंड ऑल्सो अभी जो रिसेंट वाले रूल्स हैं उनमें. एंड फिर ये प्रपोज करते हैं कि हाउ स्टरलाइजेशन प्रोग्राम एक्चुअली शुड गो अबाउट. बट देन द एडिटोरियल ऑल्सो एड्रेसेस सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं इस कैंपेन को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए. एंड लास्टली, इट थ्रोज लाइट ऑन व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू इट. सो लेट्स बिगिन. एज फार एज द कैजुअलिटीज़ इज कंसर्न, द एडिटोरियल पॉइंट्स आउट कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमें सामने आ रहा है अभी कुछ पिछले टाइम में. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड द वाई ऑफ दिस एडिटोरियल एज टू वाई अभी ये क्यों आया. बिकॉज आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा न्यूज़ में भी कि टू ब्रदर्स, टू चिल्ड्रन, मतलब उनको दे वर किल्ड बाय डॉग बाइट्स एंड दे बिलोंग टू पुअर स्ट्राटा ऑफ फैमिली. एंड उनका फैमिली का ये कहना था कि these casualties were they happened when these children, they went out in the wild to ease themselves because there are lack of toilets facilities in their homes. तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा मैटर फिर से सामने आया. एंड अगर इफ़ यू फॉलोड न्यूज़ सो यू वुड ऑल्सो नो कि कुछ रीसेंट टाइम में बॉम्बे हाई कोर्ट के भी कुछ डायरेक्टिव्स आए थे एंड डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव एड्रेस दिस इशू. नाउ सी, लेट्स कम टू दी एडिटोरियल. तो एडिटोरियल में ये बात करते हैं कि जो टसल है बिटवीन ह्यूमंस एंड स्टे डॉग्स, इट इज़ गॉन बियॉन्ड टॉलरेंस. एंड अगर हम लास्ट 5 साल की डेटा की बात करें तो हमें ये सामने आएगा कि 300 बच्चे दे वर किल्ड एंड दे वर ड्रैग टू डेथ बाय डॉग्स. एंड ये जो बच्चे हैं दे मोस्टली बिलोंग टू पुअर स्टार्ट ऑफ फैमिलीज. And also, stray dogs are responsible for 20,000 rabies death per year. And then the editorial points out the fact that this reflects on the massive problem of policy failures on part of the government. Now let's come to the question or the सिचुएशन ऑफ हाउ वी एज कंट्री डील विद स्ट्रे एनिमल्स. तो अगर हमारी कंट्री में बात करें तो दी कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग ओनरशिप, इट इज़ वेरी न्यू, वेरी नुआंस्ड. एंड अर्बन फैमिलीज़ में कुछ एक वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पीपल आर देयर जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है अपने पेट्स की, और उनको हम पेट पेरेंट्स कह सकते हैं. अदरवाइज जो हमारा रिलेशनशिप है विद दीज डॉग्स वो कैसा है, इवन इन रूरल फैमिलीज ऑल्सो एंड इन अर्बन फैमिलीज, people continue to feed these stray animals, and to a certain extent कभी कभी वो irresponsible feeding भी हो जाती है, because you feed these animals and at any place and कोई regulated place नहीं है, facility नहीं है. and then इससे क्या होता है कि these dogs they gather strength and कभी कभी फिर casualty भी cause हो जाती है. So that is one issue that has been highlighted. And then it brings us to the concept or to the question of now then who takes the responsibility, who takes the ownership of stray animals. So then of course the responsibility is on the state, because state ही responsible होगा to keep its citizens, its people, human safe, and also the domesticated animals safe. उनकी safety की जिम्मेदारी state की है. Now see, हमारे अगर हम legal regime की बात करें तो the Animal Welfare Board of India, which is a statutory body under the Prevention of Cruelty to Animals Act, इसने the board is it promulgated the Animal Birth Control Dogs Rule of 2001, जो कि अभी इसी year 2023 के rule से it has been now taken over by.
सी इस ये पर्टिकुलर रूल्स का अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं तो इट इज़ टू कंट्रोल बर्ड्स अमंग द डॉग्स एंड उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना एंड टू मेंटेन अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डॉग्स एंड स्टरलाइजेशन कैंपेन चलाना एसेंशली। तो एडिटोरियल के जो ऑथर हैं ही पॉइंट्स आउट द फैक्ट कि जो अभी हमारी ये जो रूल्स हैं ये एक तो साइंटिफिकली बैक्ड डेटा पर नहीं है and it violates guidelines provided by the World Health Organization and the World Organization for Animal Health for preventing rabies। ये जो rules हैं एक एज अ सजेशन ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम जो है ना वो जैसे कि अभी रिसेंटली एक ऑस्कर विनिंग मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तो ये टाइटल जो सजेस्ट कर रहा है कैंपेन का मोटो भी यही होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन जो होनी चाहिए वो कंटिन्यूअसली होती रहनी चाहिए एवरीवेयर ऑल एट वंस, तभी इसका इफेक्टिव हमें रिजल्ट नज़र आएगा, अदरवाइज दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। एंड सेकेंडली दी ऑथर ऑल्सो नाउ अगर हम इसमें अब चैलेंजेस की बात करें कि उन्होंने तो सजेस्ट कर दिया कि स्टरलाइजेशन जो होनी चाहिए इट शुड बी डन एवरीवेयर ऑल एट वंस, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे ऑफ कोर्स, एंड द चैलेंज ऑफ कोर्स इज रिसोर्स मोबिलिटी। हमारी कंट्री में है जहाँ पे पब्लिक हेल्थ की काफ़ी बुरी सिचुएशन है, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड हेल्थ केयर टू आवर ओन पीपल, तो देन it is not practical, and it may be a far-fetched dream that we allocate a large proportion of fund for welfare of animals, which it should be, but unfortunately owing to paucity of funds and otherwise also we are not able to do that. Now this brings us to another situation कि even अगर sterilization हो जाएगी dogs की तो भी the problem of dog bites it is not going to be solved because dogs, again the problem of the dogs dying hungry and then the feeding of stray dogs, this is going to be there। तो इसके लिए ऑथर ने ये सजेस्ट किया है कि या तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ फीडिंग फैसिलिटीज़ एस्टैब्लिश कर दें बाय एनिमल वेलफेयर एसोसिएशंस एट सर्टन प्लेसेस, एंड वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज डॉग्स फॉर लाइफ लॉन्ग, या फिर we perform the procedure of euthanasia and we we augment the dying of these dogs ताकि they also die a peaceful death and they are not left on the streets out there hungry। तो ये एक solution है, and इसमें इन्होंने reference किया है महात्मा गांधी का, or the author has said that Mahatma Gandhi has also promulgated this particular concept over a century ago when he stated when he put forth this idea before local authorities to build a pinjra pole for dogs or to eliminate them altogether। So the editorial ends with a note that as long as dogs are homeless on the street, the idea of a rabies-free India with harmonious coexistence between people and dogs, it will be a utopian dream, and keeping dogs homeless is bad for dogs, it is bad for people and bad for wildlife। So with this we've come to the end of today's TNA। अगर आपको free slide study materials and TNA slides का access चाहिए, I would request all of you to please join our Telegram channel। उसके लिए link आपको YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और you can scan this barcode। अगर आपको लॉ सीखो से कांटेक्ट करना है, these are point of contacts, you may use them। and कल के TNA की जो क्विज है उसकी लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड ऑल्सो प्लीज डू पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, द 2 questions that I asked, I would love to listen from all of you। Thank you।